मेरा नाम हीना दलवी है। मैं स्ट्रीक्स के लिए एजुकेशन लीड करती हूँ और आज हम लोग बहुत कुछ अमेजिंग करने वाले हैं ऑन स्टेज। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर शो, I would like to actually call some very important people, people who lead HRIPL, people who lead Streaks Professional. आप जो भी देखते हो ये इनके mindset से होता है. So first of all, I would like to call on stage our CEO and MD for Hygienic Research Institute and Streaks Professional, Mr. Dheeraj Arora on stage, please. Hi Dheeraj, welcome to the PBI stage. Thank you so much. Good to see all of you. Good afternoon. Excited to see a lot of action? Yes, I was just there at our counter and I saw people have come not just from Bombay, but across Maharashtra, Gujarat. So happy to see everyone around. I am Dheeraj. I represent Streaks Professional, a brand which all of you trust, a brand which has been created in India for India. Products which truly cater to the Indian audience and products which all of you trust in. And thank you for all the support that you have extended all this while for us to partner together and build Streaks Professional to be a big brand. You will see a lot of action today. I will not take too much time. I will let the team show you the best in the industry. Learn, take the best practices. We are super committed to the education of both salonists and stylists. And that's what we are here for. Consistently, we have been working on with the stylists and salonists to educate on the practices of the salon, of the hair industry. And that's what we will showcase some new trends today. We will also showcase in the afternoon, and I would urge all of you to be here in the afternoon. We will be showcasing our skin portfolio. So Streaks Professional has also entered skin, and that's our new range. So please be here and we'll see you around. Thank you so much. Have a good day. So धीरज ने ब्रांड के बारे में बता दिया है, लेकिन क्या हम क्विकली ब्रांड AV देख सकते हैं? प्लीज कैन वी हैव द ब्रांड AV ऑफ Streaks Professional and their collaboration with the salonist. Streaks Professional, India's largest homegrown professional hair care brand, has always stood for one purpose: to help every individual become the best version of themselves. With best-in-class education, we empower stylists to lead with confidence. Innovations crafted for Indian hair and skin. Chosen by salon specialists, trusted for decades. Because true beauty is more than style. It's care, compassion, and giving back to the community. Relationships that go beyond business, creating trust that endures. From salons to runways, Streaks Professional defines a style that is bold, beautiful, unstoppable. Streaks Professional, where passion meets purpose and beauty finds its true expression. So Streaks Professional सबको पता है, एक इंडियन ब्रांड है, एक होम ग्रोन ब्रांड है. बट ये ब्रांड जब शुरू हुआ था, एक फैमिली ने स्टार्ट किया था. It had a vision. Today we have somebody with us who leads Streaks Professional, head of Streaks Professional, who would like to come on stage and share a few points, a few thoughts with you all. Please welcome with me Rochelle Chabra, head of Streaks Professional, on stage, please. Welcome, ma'am. Thank you, Hina. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Lovely to see all of you here. कितने excited हो देखने के लिए, सीखने के लिए rather. Okay. So, जब हमने शुरू किया ये ब्रांड, जैसे हीना ने कहा, this was the founder family that we started off. हमारा विजन यही था कि हम जो इंडियन हेयर है उसको सबसे बेस्ट जानते हैं. बाकी कोई भी ब्रांड इतने अच्छे से
इंडियन हेयर, इंडियन नीड्स नहीं पहचान पाता। एंड हर साल जो है हम इसी थॉट प्रोसेस से कलेक्शंस निकालते हैं। हर साल एक नया कलेक्शन आता है। इस साल भी हम जो कलेक्शन निकाल रहे हैं वो है, लॉन्च कर रहे हैं, वो है इवोक। इवोक पास्ट में जो अच्छे आपके जो 70s 80s, आप सब जानते हैं कि जो 70s 80s के जो लुक्स है वो वापस आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ट्वीक्ड इनटू द करंट जनरेशन। सो इसी तरह से हमने इस टाइम अपने जो कलर पैलेट है, अपने जो ट्रेंड्स है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, उसको अक्यूमुलेट मतलब पूरा रिसर्च करके फिर उसके बाद में हमने ये कलेक्शन किया है। इवोक तो हो गया, लेकिन अभी जो है हम जो दिखा रहे हैं वो इवोक का एक एक्सटेंशन है, विच इज़ द ब्राइडल। क्योंकि अभी जो आप लोगों का सीज़न है, ब्राइडल सीज़न है, बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी शादियाँ, इंडिया हैज़ गॉट tons of weddings that happen now. So this is what we've tweaked. We have tried to make sure that even as brides, you can use these colors, you can use these styles and create wonderful looks, generating business for you, new looks, new trends. And yes, I hope you like it as much as we liked it when we sat and brainstormed on it. Thank you. रोशेल मैम स्टेज पर आए हैं और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, द कलेक्शन। आप सबको पता है हर कलर ब्रांड, हर हेयर ब्रांड एक कलेक्शन हर साल लॉन्च करता है। जब हम कलेक्शन लॉन्च करते हैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, एजुकेशन, ट्रेंड्स, क्या सिखा सकते हैं आप, अपने एंड कंज्यूमर्स को क्या ऑफर कर सकते हो, बट ऑल इन टुगेदर हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जब हम कुछ नया करते हैं, जब हम नई सोच लेके आते हैं, कुछ ट्रेंडिंग लेके आते हैं, क्लाइंट्स को हम अपग्रेड करते हैं और वो अपग्रेड के लिए ऑफ कोर्स हम एक्स्ट्रा कॉस्ट भी चार्ज करते हैं, और वो यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स आप हमारे पास आते हो जो कलर ब्रांड्स होते हैं। कलेक्शन इज ऑलवेज अ विन विन फॉर नॉट जस्ट द ब्रांड बट ऑल्सो द सलोनिस्ट, ऑल्सो द हेयर ड्रेसर हु कीप्स अपस्किलिंग देमसेल्व्स। हमने इस साल के स्टार्टिंग में एक कलेक्शन लॉन्च किया था जिसका नाम है इवोक। इवोक बेसिकली दो वर्ड्स का मिक्स है। पहला वर्ड है इवोक यानी इग्नाइट करना, कुछ जगाना, और दूसरा वर्ड है वोग यानी बेसिकली फैशन में रहना। ये दोनों वर्ड्स को मिला के इवोक कलेक्शन बना, जो हमारे 8 लुक्स के साथ बने थे फॉर 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। मैं बहुत क्विकली सबकी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहती हूँ by showing you all the Evoke collection AV, जो हमारा OG collection था actually. Can we have the AV of Evoke, please? कलेक्शन, द ओरिजिनल इवोक कलेक्शन, जो बेसिकली एक हेयर कलर कट एंड स्टाइलिंग कलेक्शन था। ये कलेक्शन बहुत ही यूनिवर्सल था। आप जो शेड्स बोलो वो, ब्राउन्स, कॉपर्स, वायलेट्स, रेड्स, ऑबन्स, मे बी सौंदरे, ऐश, हर चीज़ थी उस कलेक्शन में। सेक्शनिंग, सिंपल टू सेक्शनिंग्स, easy to do collection, wearable for everybody, every skin tone, every hair type, straight hair, curly hair, didn't matter, beautiful haircuts. फिर हमने सोचा ओके 6 महीने से ज़्यादा हो गए इस कलेक्शन को, अब तो हम जा रहे हैं फेस्टिव सीजन में, ब्राइडल सीजन में, वेडिंग सीजन में।
हाउ कैन वी कम अप विद अ न्यू कलेक्शन. फिर हमने सोचा हेयर ड्रेसर्स के बारे में. हेयर ड्रेसर्स कितना सीखेंगे, कितने ब्रांड से सीखेंगे, कितनी बार कितनी नई चीजें सिखाएंगे. Then we thought, why don't we elevate Evoke collection into a bridal collection? Because colors तो universal है, simple coloring की techniques है, shades amazing है, styling add करनी है bridal के लिए. So we elevated this collection for the bridal season with the same color tone, same color palettes, with new styling looks, specially designed for Indian brides. एक चीज बहुत कॉमन है इंडिया में, 7 फेरे. आई थिंक ये 7 फेरों से ना हर चीज जुड़ी हुई होती है. हमारी बोलते हैं ना वो शादी करके पहला कदम, हर कमिटमेंट है, हर 7 फेरा एक प्रॉमिस है. तो हमने बोला हम भी हमारे ब्राइड्स के साथ एक प्रॉमिस जरूर करेंगे. हर कलर एक प्रॉमिस होगा हमारी ब्राइड को ग्लैमरस दिखाने के लिए. हर कलर एलिवेट करेगा हमारी ब्राइड की पर्सनैलिटी. हर स्टाइल हमारी ब्राइड को एक नेक्स्ट टॉप लेवल ब्राइड बनाएगा. और इसीलिए हमने इवोक ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च किया, एंड दैट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल इवोक. कुछ लुक्स जो हमने क्रिएट किए हैं, उसके लुक्स आज हम डेमोन्स्ट्रेट तो जरूर करेंगे. ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज विपुल चुदासमा, शिरिन मर्चेंट, हु आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड टेक्निकल एम्बेसडर, जो ऑन स्टेज आपको आके लाइव स्टाइलिंग दिखाएंगे. बट उसके पहले जो ब्राइडल कलेक्शन हमने लॉन्च किया है, उस ब्राइडल कलेक्शन की एक झलक तो बनती है. सो कैन वी हैव द एवी फॉर द ब्राइडल कलेक्शन प्लीज. सो कैसे लगा आपको हमारा ब्राइडल कलेक्शन की एक झलक. हम बोल रहे हैं 7 ब्राइड्स, 7 फेरे और 7 वचन. ये 7 वचन हम भी निभाएंगे 7 कलर्स, 7 टेक्सचर और 7 स्टाइलिंग के साथ. और इसके साथ ही मैं ऑन स्टेज ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ और बुलाऊंगी हमारे आर्टिस्ट को जो हमारे साथ है, जो आपके लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये पूरे कलेक्शन के कुछ लुक्स. बट हम हमारा 7 वचन तो निभाएंगे, पूरे 7 ब्राइड्स आपके लिए प्रेजेंट भी करेंगे. एक बहुत अमेजिंग रैम्प शो भी है एट द एंड ऑफ द शो, तो कहीं जाइएगा नहीं. While I continue, I would like to call on stage Vipul Chudasma, Creative Director for Streaks Professional, and Shirin Merchant, Technical Ambassador for Streaks Professional. Can we have you both on stage, please? Woo! So, as much as I wish कि मैं और टाइम रहूँ यहाँ पे बातें करती रहूँ, बट अगर मैं बातें करती रहूंगी तो आपका ध्यान सिर्फ मुझ पे ही जाएगा. नहीं रह सकते आप. जो मैं चाहूंगी नहीं, लेकिन yes, over to him, over to her, and the models that we are going to present. I'll see you guys in a while. Thank you. Yes. So I'd like to call upon my model on stage, Praveen, with our technical team.
member Praveen to help me. So as you all know, Evoke collection के बारे में आपने देखे हैं पूरे वीडियो. कैसे लग रहे थे सारे looks? अच्छे लग रहे थे. और ज़्यादा हमारे इंडियन मार्केट के लिए है क्योंकि जो ब्राइट शेड्स है हमारे कंपनी के हाई लिफ्ट शेड्स, उनको हमने सॉफ्ट शेड्स के साथ मिक्स करके वेरिएबिलिटी के हिसाब से बनाए हैं सॉफ्टर टोन्स पे. ओके, तो ये है मेरा अर्बन शैग जो आपने लुक देखा था इवोक कलेक्शन में. अभी उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे इवोक ब्राइडल कलेक्शन विच इज़ आ अर्बन टाई बैक लुक. ओके, सो इसमें हम स्टाइलिंग करने वाले हैं. कंप्लीटली बाल खुले हैं मॉडल के, हमने सिर्फ ब्लो ड्राई करके रखे हुए हैं, तो पूरी स्टाइलिंग मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी. इट्स अ सेमी ओपन स्टाइल. ओके, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है जब मॉडल्स के बाल बहुत पतले होते हैं तो हम एक्सटेंशन कैसे फिट करते हैं भी आपको दिखाऊंगी. ओके, थैंक यू. ओवर टू यू. Check, 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 mic check, mic check, mic check. यहाँ मैंने सॉरी यू कैन स्टार्ट. Hey, you can go on. Can you hear me, guys? Yes? Perfect. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. हाँ, ये हुई ना बात थोड़ी. How are you all? Very good, very good. Thank you. So, yes, जैसे शिरीन मैम और हिना मैम ने एक्सप्लेन किया, we are presenting bridal and of course season आ रही है, सब लोग अभी busy हो जाएंगे ना salon में, festivals, weddings and all of that. So we have prepared beautiful collection by Streaks Professional Evoke में हमने cut and style का भी किया है, but we thought to do something interesting for all of you क्योंकि सिर्फ cut and color नहीं होना चाहिए और सिर्फ स्टाइलिंग नहीं होना चाहिए, but it should be even bridal. So we thought of creating some amazing looks for all of you, where you can do this kind of bridal looks for your clients during the season and make more money, right? But I always feel that whenever you do bridal, one thing is very important, जहाँ पे आपको कलर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम टाइम सब लोग ब्राइडल तो करते हैं बट डार्क हेयर पे अगर डायरेक्टली अगर आप स्टाइलिंग करोगे तो इतना टेक्सचर, इतना अच्छा प्यारा जो लुक दिखना चाहिए वैसा दिखता नहीं है. सो द कलर प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कलर आपके स्टाइल को और निखारेगा और अच्छा करेगा. सो वी हैव डन ऑल द लुक्स. यू कैन सी ब्यूटीफुल कलर, दैट्स ऑम्ब्रे, दिस इज वॉयलेट. इवोक का एक जो लुक है वॉयलेट फ्रिंज, जहाँ पे कर्टन फ्रिंज हमने किया है. सेम कलर टेक्निक, सेम कलर प्लेसमेंट हमने इनके लिए किया है. ऑलरेडी है प्रेप दी है, आप देख रहे हो. मैंने ऑलरेडी वेव्स इनका बैक स्टेज कर लिया है क्योंकि वेव्स करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. यहाँ पे टाइम वेस्ट ना और हम सीधा आपको पॉइंट पे लेके आए जो आप लुक देखो. सो ऑलरेडी वी हैव डन द प्रेप और ये प्रेप के हिसाब से हमने सारे बालों को वेव्स क्रिएट किया है सेक्शन बाय सेक्शन लेके. बट कल येस्टरडे हमने इनका कलर किया है जो आप देख रहे हो. बहुत ही कमर्शियल, वेरिएबल, क्रिएटिव और बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग वॉयलेट जो हमारे स्ट्रिक्स प्रोफेशनल आर्गन सीक्रेट्स की पैलेट में है. ऑफ कोर्स सिर्फ इसमें हमने एक कलर यूज नहीं किया है. वी हैव क्रिएटेड अ कलर रेसिपी जहाँ पे 2-3 अलग अलग शेड्स को मिक्स करके आप सिर्फ आपका कलर जो हो वो आपके क्लाइंट्स के लिए कर पाते हो. उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये प्रिपेयर किया है. इस लुक के लिए हम साइड पार्टिंग लेंगे एंड वी हैव डन ब्यूटीफुल वेव्स. अभी इसको हम ड्रेस करेंगे. अभी जो मैं करने वाला हूँ दैट इज गोना बी अपडू, जो रिसेप्शन के लिए, वेडिंग के लिए, एज अ ब्राइड और इवन जिसे टर्म यूज करते हैं ना साइडर्स, मदर हो गई, सिस्टर हो गई और कोई फ्रेंड्स है उनके लिए भी आप ये लुक कर सकते हो. बट थोड़ा सा ब्राइडल जोन में है, बट इसको अगर थोड़ा कॉम्पैक्ट करेंगे तो आप छोटा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. सो साइड पार्टिंग, ये सारे बाल इस तरफ, ये सारे बाल इस तरफ एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैक. सो बैक में हम कैसे शुरू करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन लेंगे यहाँ पे कान के पीछे और ये जो है ये सारे बाल हम ड्रेस करेंगे. यहाँ पे हम अपनी इंडियन लैंग्वेज में
या देसी स्टाइल में बोलते हैं मैसी बन। मैसी बन बोलते हैं ना, बट मैसी तो कोई कराता नहीं है। मैसी कोई कराता है? कोई आके बोलेगा सैलून में कि मुझे मैसी बाल बना के दो? नहीं ना। सो इट्स नॉट मैसी बन, इट्स कॉल्ड टेक्सचर्ड बन। क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना कि मुझे पफ करके दो, पफ खाने का होता है, उसको बोलते हैं पूफ। सही वर्ड क्या है? पूफ, नॉट पफ, क्योंकि पफ चिकन पफ, वेज पफ वो होता है। तो पफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पूफ। और उसी तरीके से यहाँ पे जो हम स्टाइल करने वाले हैं, इट्स बेसिकली टेक्सचर्ड बन, राइट? क्योंकि बालों में टेक्सचर और मूवमेंट होता है और उसके हिसाब से हम बन बनाएंगे। वॉल्यूम छोटा बड़ा आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, राइट? बहुत अच्छा सैलून बना के प्रोफेशनल सैलून नहीं बनता है, बट प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करके हम प्रोफेशनल बनते हैं। चाहे वो छोटा सैलून हो 1 चेयर का, और चाहे 10 या 20 चेयर का बड़ा सैलून है। तो आपका सही लैंग्वेज, प्रोफेशनल टर्म्स को यूज करना बहुत जरूरी है, और वही हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर एरिया विच इज बैक। वहाँ पे एक सेक्शन लूंगा, कैसे लेता हूँ, क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। शिरिन, you can explain further. So while Vipul was talking to you about his look and the approach and the professionalism जो होना चाहिए, मैंने एक पोनीटेल बनाया है। मैंने जो हमारा फ्रंट रेडियल सेक्शन था, जो फ्रंट का सेक्शन था, रेडियल सेक्शन होता है फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड टू ईयर, उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सेक्शन। जो फ्रंट का सेक्शन होता है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो ऊपर का हिस्सा था उसे मैंने, जो बनी हुई पोनी थी ना क्राउन की, ये जो पोनी, उसके नीचे दोनों सेक्शंस को मिला के वो पोनी के नीचे एक पोनी बना दी। अभी जो बचा हुआ फ्रंट का दूसरा नीचे वाला सेक्शन है, उसे मैं क्रिस क्रॉस करके ऊपर की तरफ लेके उसे यहाँ पे क्राउन पे लेके पोनी करूंगी। ओके, सो इट्स मोर लाइक अ फ्लैट क्रिस क्रॉस लुक आउट हियर। रबर बैंड लगाने से पहले स्टील क्लिप्स आर वेरी हेल्पफुल। स्टील क्लिप से हम उसको पोजिशनिंग है, सो आई कैन रिलीज माई हैंड फॉर द अदर साइड। सो स्टील क्लिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। आप क्या टूल्स यूज करते हो उस पर आपके हेयर स्टाइलिंग की फिनिशिंग निर्धारित है। आप क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो उस पर आपके हेयर स्टाइलिंग की फिनिशिंग का एंडिंग रिजल्ट पता चलता है। और आपके बालों में कलर आपने किस तरह से किया है उस पे भी आपकी हेयर स्टाइल कितनी खूबसूरत दिखेगी वो निर्धारित होती है। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है अर्बन शैग में जो कलर, वो है हमारा 7.5। कितने लोग यहाँ पे स्ट्रीक्स प्रोफेशनल यूज़ करते हैं? सबको मालूम है 7.5 एक कैसा वाला कलर देता है? अच्छा सा कौन सा कलर देता है अगर आप फैशन शेड की बात करोगे तो? हाय 5 is not a gold, 5 is a gold in another brand. 5 is mostly a mahogany, right? So mahogany के tones दिख रहे हैं यहाँ पे। उसमें हमने उसे और डेप्थ देने के लिए वहाँ पे हल्का सा 5.66 भी ऐड किया है, ज़्यादा वार्म। अगर ज़्यादा डीप पे जाना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा चॉकलेटी कॉपरी दिखाने के लिए हमने दोनों को 10:3 के मिक्सिंग रेशो में बनाया है। सो इट गिव्स हर दैट वेरी नाइस। डस्की स्किन पे भी ये कलर बहुत सूट करता है। You know, most Indian skins are dusky. So if this color is complementing and then the hairstyle is complementing, everything put together makes it like a perfect look for your bride this season. Yes, over to you, Vipul. Thank you, Shirin. Okay, so moving forward, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes? Gel. Yes, perfect. Okay, so moving forward, what I have done, ब्रेड बनाया, ठीक है? मैक्सिमम टाइम जब भी हम अपडूज करते हैं, कितने लोग ब्राइडल करते हैं यहाँ पे? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए ना। सर आप क्या करते हैं? टाइम पास? हाँ, हेयरकट। ओके। सो जितने भी लोग यहाँ पे ब्राइडल करते हैं, कहीं ना कहीं सबके माइंड में ऐसा होता है ब्राइड चली जाती है और जब तक दूसरा दिन या तीसरा दिन नहीं आता है, क्लाइंट का कॉल नहीं आया कि सब बराबर हो गया, तब तक ऐसा लगता है कि आई होप बन खुल तो नहीं गया होगा,
आई होप रह जाए। फिर ब्राइडल को बोलते हैं हम, Rubber band. सारी ब्राइड्स को बोलते हैं कि ज्यादा हिलना मत, बालों को टच मत करना, है ना। तो फिर वो एकदम कॉन्शियस हो कैसे सब करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो हमने किया है रिवर्स करूंगी तो वो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जितना फिक्स होना चाहिए, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा डाइसी है, राइट। एंड स्पेशली अपडूज के लिए ज्यादा होता है कि पोनी खुल ना जाए, रबर बैंड निकल ना जाए, ये सारे मन में से होता है। तो ये सब सारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सही अप्रोच है, सही प्रोसेस है, आई डोंट थिंक सो कोई भी स्टाइल आपका ओपन हो सकता है। एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वरी फ्री। So for that, what I have done, I have taken a small section which is next to occipital bone, जहाँ पे हमने braid create किया है, और ये है मेरा base। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे ये stuffin। stuffin अलग अलग आते हैं, stuffin बोलते हैं, donut बोलते हैं, volume बोलते हैं, सब लोग अलग अलग terms use करते हैं। But this is for the volume, जिसको हम यहाँ पे place करेंगे, और इसके ऊपर सारे बालों को ड्रेस करने वाले हम लोग। ओके, ये अगर सीधा सीधा मैं बैक कॉम करके सीधा लगाऊंगा तो लूज रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो ओपन होने के चांसेस है, वो ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड बनाया है। जो ये बेस मेरा एकदम फॉर्म हो गया, और इसके ऊपर हम स्टफिन लगाएंगे बाय यूजिंग यू पिन्स। सो बड़े वाले यू पिन लेंगे, इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और जैसे दो कपड़े को स्टिच करने के लिए सिलाई करते हैं, Okay. उसी तरीके से स्टफिन और बाल, मतलब जो आपका पोनी बनाया है, ब्रेड किया है, उसके ऊपर यू पिन जो है वो पहले स्टफिन में जाएगी, फिर बालों में जाएगी, फिर वापस स्टफिन में जाएगी। तो क्या होगा? स्टिच, राइट। सो जैसे ये एक पिन मैंने यहाँ पे लगाया है, वैसे हम दूसरी इस तरफ, तीसरी इस तरफ, Okay, just to intervene a little bit, since there is a crucial thing that I'm doing. बहुत बार ऐसा होता है जब हम पोनीटेल लेते हैं, क्या होता है, बाल पतले होते हैं। जब हम उसे ऊपर लेंगे तो ना तो हमें लेंथ मिलेगा ना वॉल्यूम। तो आपने देखा मैंने 3 पोनीटेल्स बनाई थी, और जो क्राउन के हिस्से में मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरी पोनीटेल गिर के आए, बहुत अच्छी से वॉल्यूम, बहुत ज्यादा भी नहीं पर एटलीस्ट इनफ वॉल्यूम होना चाहिए कि उसका बैलेंस दिखे बाकी के बालों की तरह। ऐसे नहीं कि वो छोटा सा इधर आके खत्म हो जाए, वो बहुत फनी दिखता है, ब्राइडल नहीं दिखता है। ओके, ब्राइडल में वो कनेक्शन एंड फ्लो आना चाहिए विद द लेंथ। तो लेंथ और वॉल्यूम देने के लिए हमने एक छोटा सा एक्सटेंशन हमारे पोनीटेल के साथ मिला दिया है। अभी मैं ये पोनीटेल को रिवर्स करूंगी। आप देखते हो ये एक्सटेंशन में भी मैंने सेम प्रेप दिया है, आप हल्का सा क्रिम देखोगे, यहाँ पे क्रिम किया हुआ है, पता भी नहीं चल रहा है, वेरी लाइट हैंडेडली। सिमिलरली फ्रंट के सेक्शन में भी दिया है ताकि मेरी पोनीटेल थोड़ी सी वॉल्यूमनेस बने। सो Okay. नाउ आई विल रिवर्स इट। यस विपुल, सो शाइन स्प्रे, कितने पिन्स लगाए हमने? 2 स्टील क्लिप्स। वो 2 यहाँ से ऐसे, 2 यहाँ से ऐसे। और एक स्टील क्लिप। Right? So no chance this will come out. Just by using, you don't have to put 50 pins, just 4 pins. क्यों? क्योंकि सही तरीके से चीजों को समझ के फिर बाद में करेंगे, you will have better outcome with simple band. steps. Put ये your head होने up, के put your बाद head ये जो ब्रेड है हम इसके ऊपर Put your hand up. ड्रेस करेंगे, and now everything we will start dressing on top of this, section by sections. Okay, so now what we are going to do is we will take small sections, brush or open Hold the pin over here. Hold the pin. open every section, slightly back comb, spray. You can leave this, yeah, लग रहा है? and we will start dressing on top of this. अभी ये देखो मैंने लॉक नहीं किया है, सिर्फ यू पिन से उसको होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद उसको स्प्रे करेंगे और सारे ड्रेस करते जाएंगे, क्योंकि हर सेक्शन पे अगर आप यू पिन्स यूज करोगे, यू विल एंड अप यूजिंग सो मेनी यू पिन्स, बहुत सारे यू पिन्स हो जाएंगे, फिर बाल कम, पिन ज्यादा दिखेंगे, Tong, है ना। tong. काफी बार होता है ना,
अगर शादी का वीडियो देखेंगे ऐसा लगता है अरे यार मेरे बाल में पिन ज़्यादा दिख रही है, बॉबी पिन्स, यू पिन्स। बालों का स्टाइल है, पिन जो लगाए उसका स्टाइल नहीं है, राइट? सो इट हैज टू बी लेस अमाउंट ऑफ पिन्स, मोर ड्रेसिंग, मोर ब्यूटीफुल हेयर। सो ये हमने ऐसे लगाया है, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। आप बड़े छोटे पिन यूज कर सकते हो एंड जस्ट लीव इट लाइक दैट, ओके? एंड आई विल कीप कंटिन्यू ड्रेसिंग ऑल हेयर सेक्शन बाय सेक्शन। तो ये जो पोनीटेल मैंने रिवर्स किया हुआ है उसके पीछे से मैं हल्का सा बैक कोमिंग कर रही हूँ फॉर एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड। ओके, बैक कोमिंग अलग तरीके से के होते हैं। सबको मालूम है कितने तरीके के बैक कोमिंग होते हैं? किसी को मालूम है? मालूम है पर कोई हाथ नहीं उठा रहा है। मोटिवेशन चाहिए गिफ्ट्स देने का। ओह या वी हैव वन जेंटलमैन, कैन वी हैव अ माइक इन द ऑडियंस? Can we have the mic in the audience? Acha, bro, I think he's busy on the call. Bro, mic. Shirin, Yeah, किनको देना है? this gentleman in the second row. Yes, He's going to talk about the different backcombing the boy is techniques. busy. हेलो सो Yes. बैक कमिंग मैम बहुत टाइप की होती है, उसमें थोड़ा एंगल्स mic अलग नजदीक अलग रखेंगे होते हैं। क्या? नजदीक। हाँ, नजदीक? और नजदीक। और हाँ, ये बेस्ट है। ओके, सो बैक कमिंग बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि टीजिंग हो गई, देन अलग अलग डिग्रीज पे होती है, 45 95 जितनी डिग्री पे होगा उसके हिसाब से उसमें टेक्सचर क्रिएट होता है बालों में। Okay, हम्म okay. तो टू स्पेसिफाई मोर ऑन दैट, वेरी गुड, एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया। यस, बैककोमिंग को टीजिंग भी बोलते हैं। ओके, अगर आपके बैककोमिंग से बहुत ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हो, एक वुल जैसा वॉल्यूम, कॉटन जैसा वॉल्यूम क्रिएट करते हो, जहाँ पे पूरे बालों को हम एंड से रूट तक लेके खींचते जाते हैं विद बिगर स्ट्रोक्स, ओके, दैट्स कॉल्ड कॉटन बैककोमिंग। जो बैककोमिंग में हम छोटे 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 स्ट्रोक्स दे देते हैं, वहाँ पे एक मैश लाइक पेपर जैसा फीलिंग देते हैं, स्टिफनेस देने के लिए, उस सेक्शन को मैलिएबल बनाने के लिए। तो वो बैककोमिंग को बोलते हैं हम पेपर बैककोमिंग। वो पेपर की तरह थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फुग्गे की तरह बैककोमिंग नहीं होता है। और तीसरा होता है स्कूपिंग, जहाँ पे भी हमें लो बंस बनाने, हमें नीचे से थोड़ा सा बैककोमिंग चाहिए, हम सी शेप कोमिंग में बालों को 2 to 3 इंच अवे फ्रॉम द रूट्स बैककोम देते हैं। So it's an in between from a cotton to a paper. वो in between वाला बैककोमिंग होता है। So here I have used scooping. Can you see? अच्छा सा बाल देने के लिए सारे सेक्शन में मैंने स्कूपिंग किया और ये अच्छा सा वॉल्यूम। How do you like the volume? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। Yes, thank you. और मैंने उसे स्प्रे करके सारे फ्लाईवेज को सेट कर दिया है। Now मैंने बिल्कुल बालों को टोंग नहीं किया था। नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज दिस पोनीटेल विद द रेस्ट ऑफ द वेव्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे वेव्स नहीं चाहिए, मुझे सॉफ्ट स्ट्रेट में से हल्के से वेव्स चाहिए। सो हाउ आई कनेक्ट द पोनी विद द रेस्ट ऑफ द हेयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ आई टोंग द हेयर इन अ ट्विस्टिंग रैपिंग टेक्निक, वो भी आप देखोगे, तभी आपको वो एक सुंदर सा एस वेव मिलेगा, विच आई एम ट्राइंग टू अचीव ओवर हियर। So Shirin and Vipul, I know आप लोग बहुत इंटरेस्टिंगली और बहुत डेडिकेटेडली एजुकेशन दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, बट आई वॉन्ट टू टेक सम टाइम बिकॉज मैं अपना 7 वचन का 7 वादा निभाने आ गई हूँ। हमारे 2 वचन तो ऑन स्टेज ही हम कर रहे हैं, बट बाकी के 5 का क्या? ऑब्वियसली इतनी मेहनत से स्ट्रीक्स प्रोफेशनल टीम ने आप सबके लिए 7 वचन के 7 लुक, 7 कलर, 7 स्टाइलिंग क्रिएट किए हैं, और 1 by 1 I would like to call on stage each model that we have created for you all. So, हम बुलाना चाहेंगे the first look. Can we have some music from the console? अच्छा लगेगा सुनने में. So the first look of the color from the bridal collection. It is a promise of passion. The beige curls, where elegance meets purity. Soft beige waves that whisper beauty in simplicity, timeless, effortless, and divine. That is the passion, the promise. I think हर शादी में हम सबको पता है, बहुत important है ये वचन निभाना। हिंदी में बोलते हैं पैशन को जुनून,
अगर शादी में जुनून नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं होगा. The second look that we have is the promise of eternal love. प्यार, मोहब्बत और इश्क. The crimson lens, when love burns deep and true. A bold crimson hue that captures the fire of forever. A promise of love and endless love. That is the promise of eternal love, crimson lens. The next look is the promise of strength, the mocha mirage. Calm, composed, and rooted. A rich mocha brown tone that mirrors a bride's resilience and grace, steady as her love. ये बहुत अमेजिंग शेड है इंडियन ब्राइड्स के लिए, द मोका मिराज. The next look and the next promise is the promise of companionship. साथ निभाने का promise जो हर bride करती है. It is the honey veil color, where laughter and joy weave through every strand. A honey-kissed glow that reflects the warmth of shared smiles and sunshine moments. धूप और छाव तो शादी में लगी रहती है, but ये moment as a bride enjoy करना बहुत ज़रूरी है. The honey veil, the promise of companionship. The next promise is the promise of trust. The color Cendre Cascade. Understated yet unshakable. Ashy, silken tones that speak with quite a confidence. It has faith and forever. दो promises हम stage पे already निभा रहे हैं. The promise of growth with the violet crown जो विपुल कर रहे हैं, and the promise of commitment with the auburn tie back जो शिरिन कर रही है. बट हमेशा हम सोचते हैं वेडिंग सीजन सिर्फ ब्राइडल्स के लिए होता है, एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन. आज मैं बोलूँगी व्हाई शुड ब्राइड्स हैव ऑल द फन. सो वी हैव सम लुक्स फॉर द ग्रूम्स एज वेल. कैन वी हैव द फर्स्ट ग्रूम विद द लुक एस्प्रेसो फेड. ये लुक हमारे ओरिजिनल इवोक का कलेक्शन है और आज के ग्रूम्स के लिए है, जो अमेजिंग सॉफ्ट ब्राउन कॉफी टोन से बना हुआ है. द नेक्स्ट लुक फॉर द ग्रूम इज द ऐश मलेट. ये आज के उन जेंजीज के लिए है जो फैशन भी करना चाहते हैं, लॉन्ग भी रखना चाहते हैं और फेड भी करना चाहते हैं, और उनको अपना एक स्टेटमेंट इवन एज अ ग्रूम डालना है, बिकॉज हमेशा व्हाई शुड ब्राइड्स हैव ऑल द फन. And the last look for the groom that we have is the Amber Classic. A very classic, the look of the millennials. The look that is soft, composed, soft hues of amber gold brown shade. Very, very classic. हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 7 वचन, 7 कलर्स, 7 टेक्सचर्स एंड 7 स्टाइल्स. And now, leaving again back to Vipul and Shirin to take the education forward. Thank you, everyone. Thank you. So it was excellent. I think all the looks. Did you all like all the looks? Yes. So can we have a round of applause? Okay. As you all must have seen, I have taken just big sections, 5 to 6 of them, twirled the hair around the tongue in a twisted, flat at the back, twisted on the top technique. Okay. And I am locking my curls with the hair coming from the top of that section. तो ज़्यादा करके मुझे पकड़ना नहीं पड़ता when it's a smaller section, but because it's a heavier section, थोड़ा सा I have to. Otherwise, the hair just stays locked inside like that. But because it's a larger section, we can just slightly hold it from the top. So this is a more sophisticated, clean look, a more modern approach. क्योंकि हम आपने बाकी के सारे ब्राइडल्स देखे, वो भी सारे मॉडर्न ट्विस्ट के साथ हमने प्रेजेंट किए हैं, पर ये जो है वो मॉडर्न विद ट्रेडिशनल दोनों. जैसे हम एक पूरा टाई अप लुक दे रहे हैं मिस्टर विपुल, एंड रेस्ट ऑफ द लुक्स वर मोर
completely half open, and some of completely open. So these kind of looks can be used more for your mehndi function, more for the semi-functions, semi-bridal functions. So coming to the last section, if you all want to see how I had done my tonging, just to explain to you all, I used shine spray all over the ends, especially ends को अच्छे से shine spray लगाना है. That's the trick. आप देखोगे जब मैं खोलूंगी, बहुत सुंदरता से मेरे curls खुलेंगे without any frizz. Good amount of shine spray on the ends. Good amount of whole spray along the middle ends and not on the ends. देखो आपको लगता होगा पूरे नीचे तक मैं स्प्रे कर रही हूँ, पर whole spray मेरा नीचे नहीं जा रहा है. So you have to be observant कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ. Because I don't want my ends to get locked up. That's the trick of doing an S wave. Flat winding से शुरू करके twisted winding on the top, flat winding at the bottom, twisted winding on the top, flat winding on the bottom, twisted winding on the top till I reach the ends, and then I go and lock it with the top hair. So this is almost my last section, after which I'm going to start opening up all my sections. Yes, over to you, Vipul. You're almost coming to the end of your hairstyling, and she's looking very pretty. Thank you. Very much like that picture which was there behind. Close to that, na? I was just thinking about Hina, the way she was explaining. I think team has chosen someone who's married should present like that. है ना? जैसे she was explaining. She did it. She did a fab job out of it. Okay, guys, do you like it? How it's evolving? You know, the overall process. I think मजाक में अच्छा हो गया, है ना? You can see the whole movement, texture. थोड़ा लंबा है, काट दूं? नहीं, काट नहीं सकते. Okay, now apart from this, we have already done, you know, beautiful placement, color. हमने 622 के साथ 316 मिक्स करके उसमें आप थोड़ा क्रिम्सन रेड डाल के ऐसे अपना कलर रेसिपी बना के कर सकते हो. बट जस्ट इन केस, काफ़ी बार ऐसा होता है, कलर तो कर लिया, सैलून में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अपडूस करने के बाद ऐसा लगता है कि अरे कलर तो दिख ही नहीं रहा गरम है थोड़ा सा, है ना? ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है, सबके साथ होता है ना? सो व्हाट यू कैन डू इज you can have some extensions. You can have some extensions और इसको हम additionally add कर सकते हो. कहीं पे आपको लगा कि अरे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ऊपर तो कलर दिखना चाहिए, अंदर नहीं दिखेगा तो ठीक है. तो ये जो सेक्शन मैंने किया उससे पहले आप अंदर एक छोटा सा सेक्शन लगा के इसको ड्रेस करोगे, और उसके ऊपर ये जो लास्ट वाला है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कलर अच्छा दिख रहा है, बट इफ़ यू वांट टू शो मोर कलर देन यू कैन टेक स्मॉल पीसेस ऑफ एक्सटेंशन. इसी को आप लाइटनिंग करके डायरेक्टली जैसे भी आपको करना है इसको कलर करके डायरेक्टली आप लगा सकते हो. अभी मैडम को ज़रूरत नहीं है. ओके, आफ्टर दिस, now this is the most important part, फ्रंट, राइट? क्योंकि पूरा फोकस फेस पे जाने वाला है, एंड इसको आप कैसे प्लान करोगे? अभी मैंने देखा है, जैसे इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मैक्सिमम जितना भी ब्राइड होता है सबका पूफ, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबका पूफ. आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट, है ना? जैसा फेस, जैसे क्लाइंट, जैसा उनका आउटफिट, उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए, ना कि सेम स्टाइल सबके लिए, राइट? हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आपके फेस के हिसाब से करेंगे, अच्छा आपका लहंगा दिखाओ, बट घूम फिर के होता क्या है? पूफ, है ना? वही होता है. सो यू शुड नॉट डू दैट. नाउ समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स बोलता है कि मुझे वॉल्यूम चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए, राइट? बट वॉल्यूम हमेशा आपको फेस के हिसाब से प्लान करना है. लंबा फेस है तो वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वॉल्यूम करोगे तो फेस और लंबा दिखेगा, right? So accordingly you can plan and you can do it. Now for her, one option is you go flat, right? Another option is you have volume.
Another option you can have in between. And according to that, you can have a different variation for your different clients based on requirement. मेरा उस दिन मूड कैसा है, कैसा लुक करूंगा वैसा नहीं, बट क्लाइंट का फेस कैसा है उसके हिसाब से. प्लस व्हाट शी इज वेयरिंग, उनका आउटफिट कैसा है. अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम है, आपका हेयर अप जो होना चाहिए वो भी बड़ा होना चाहिए, राइट. किसी ने बहुत ही स्लीक पहना है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, जैसे इवनिंग कॉकटेल गाउन्स रहता है ना, अगर किसी ने स्लीक पहना है तो फिर ऐसा नहीं करेंगे. सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट, व्हाट काइंड ऑफ फेस, व्हाट काइंड ऑफ हेयर. अकॉर्डिंग टू दैट यू प्लान योर हेयर कट, कलर, स्टाइलिंग एंड वॉल्यूम, राइट. सो मूड के हिसाब से काम नहीं करना है, but depends on the requirement you plan and then you do it. So similarly, what we are going to do is, we are going to take this section, very slight back combing on the roots. पूरा बैक कोमिंग ऊपर तक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिफ्ट जो चाहिए वो रूट्स पे चाहिए, पूरे बालों पे नहीं चाहिए, राइट. So we just lift the roots, and after that we dress it. Shine spray. So yeah, I was just stopping in between. What important junction पे आई हूँ. We do waves भी बनाना आता है, पर सारे waves को एक साथ merge करना is the trick. You know, जो हम सबसे नहीं हो पाता. Everybody knows it, but how to get it right is the challenge. ओके, सो व्हाट आई डिड, ये अभी मैंने सिर्फ ये सेक्शन को खोला है, आपने दिखा ये सेक्शन को मैंने खोला, स्प्रेड नहीं दिया. अभी इसके डेंट को मुझे इसके साथ मैच करना है, इस वाले सेक्शन को मुझे नेबरिंग सेक्शन के साथ मर्ज भी करना है. जब हम पूरे सेट वेव्स करते हैं, आजकल जो आप यूट्यूब पे, आप इंस्टा पे देखते होगे, वो यही टेक्निक है. द होल आइडिया इज हर एक सेक्शन का कनेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ होने चाहिए, हर एक बॉटम सेक्शन का कनेक्शन ऊपर वाले सेक्शन के साथ होना चाहिए, टू जस्ट मेक इट लाइक वन परफेक्ट वेव सिटिंग टुगेदर ऑल इन वन. सो हियर इट इज. व्हाट इज इट, यू हैव टू होल्ड द सेक्शन एट द बॉटम लाइक दैट. यहाँ से हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि द होल आइडिया इज यहाँ पे जब छूट जाता है वो फ्रिज होके ऊपर चला जाता है, ये पूरा सेक्शन फ्रिजी हो जाता है. कैन यू सी मेरा सेक्शन फ्रिजी हुआ है? नहीं. अच्छा लग रहा है? यस. शाइनी लग रहा है? एग्जैक्टली. तो मुझे सिर्फ ये सुपरफिशियली टॉप सेक्शन को ही कोम करना है इस तरह से, ओनली द टॉप सेक्शन. ये कोम होने के बाद फिर मैं मेरे बॉटम को रिलीज करूंगी इस तरह से. लॉक इट and then give it a smooth comb at the bottom like this. Okay, so once this is opened up, then वो curtain की तरह पूरा ही section खूबसूरती से open up हो जाएगा, and overlap it over your previous section to match up with the dent which is there of the previous section. Nice. I think बोलने के पैसे लेते लोग, है ना? Yes, exactly. Everybody needs motivation. Okay, so I am almost done. You can see we're just adding little bling, because शादी वादी में थोड़ा bling मजा आता है ना? Bling के बिना ऐसा लगता है थोड़ा फीका फीका है. So you add some life. But not too much, okay? Spray. ज़्यादा शक्कर भी अच्छी नहीं होती है ना, so too much accessory is also not good. Look down, man. So just little bit here and there. Showers of blessings. Can you turn fully? Showers of spray. Turn. अच्छा लग रहा है. Hi. That's it. Turn. So जब भी स्टाइलिंग हो जाएगी ना, उसके बाद आपको क्या करना है, सैलून का कोई एक कॉर्नर रहेगा ना, उधर जाके देखना है थोड़ा दूर से, क्योंकि जब दूर से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आई थिंक वो एक बाल थोड़ा बाहर निकल रहा है,
है ना, तो दूर से पता चलेगा, क्योंकि जब इधर से ऐसे काम करते हैं ना तो पता नहीं चलता है कैसा क्या हो रहा है। काफी बार बहुत नजदीक से आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं। फ्रिजी लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, बट स्टाइलिंग always looks beautiful slightly away from your client or hair, and then when you look at it and you feel that wow, I think it's nice, there's no frizz, and little bit frizz is fine because that's the beauty, that's hair, and hair should be slightly natural and not very stiff. वो वरना फिर ऐसा लगेगा कि पूरा पापड़ जैसा कड़क कड़क ऐसे फिक्स फेक ऐसा दिखता है ना। Thank you. Do you want to walk? Yeah, and also my model is going to Wow, walk along. looking so nice. More clean, more finished, more messy. Two contrasting looks on stage. One up, one down. Okay? So this is one of the most trending looks. आप use कर सकते हो इस season आपके salons में. Only one single extension. इसको काटने का मन कर रहा है पर काट नहीं सकता हूँ। नो नो नो, अरे नहीं ओके, नो नो, हाँ। Thank you I'll so do it. much for having us. And yes, if you're going to cut it, are we going to cut No it? no no, it's okay, it's okay. It's okay. Okay, so Abhi- wait and watch for the grand finale when all our models work together to create that oomph and drama. So stay tuned. Thank you guys, thank you. Wait here, okay? Don't go anywhere. Wait, because we have all the models coming for you. We can take pictures, videos. Do tag Strix Professional, okay? When you post, when you do stories, do tag Strix Professional. और मुझे और शिरीन को भी करना, विपुल चुडासमा ऑफिशियल एंड शिरीन मर्चेंट। इमरान, शिरीन मर्चेंट, या ओके, थैंक यू।